الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں یہ چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی۔ اے دل نہ پوچھ مجھ سے کہ رتبہ ان کا کیا ہے، اے دل نہ پوچھ مجھ سے کہ رتبہ ان کا کیا ہے، فرشتے بھی حیراں ہے مقام ان کا کیا ہے۔ جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، جہاں دنیا کو کہتے ہیں، جہاں تاریک تھا سخت کالا تھا ظلمت کدا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا گھر گھر میں اجالا تھا۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ بزرگوں اور دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو سید اولین والآخرین ہیں، جو اس کائنات کے وجود کے باعث ہیں، اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو نہ زمین نہ آسمان نہ سورج نہ چاند نہ ستارے نہ آدم نہ عیسیٰ نہ ہوا نہ آپ اور نہ ہم نہ شجر حجر کوئی چیز نہ ہوتی۔ یہ ساری چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کے مبعوث فرمانے کی برکت سے یہ ساری چیزیں وجود میں آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کا نظام بگڑا ہوا تھا، اس کارخانے کا نظام بالکل بیکار اور کنڈم تھا، اور اتنا بگڑا ہوا تھا کہ بھائی بھائی کا دشمن تھا، باپ بیٹے کا دشمن تھا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے تھے۔ اور کس چیز پر؟ ایک قبیلے کے اونٹوں نے دوسرے قبیلے سے پہلے پانی پی لیا تالاب پر، تو اس بات کو لے کر ان میں جنگ چلتی تھی، تلواریں میان سے نکل جاتی تھی، آپس میں لوٹ کھسوٹ مار جھگڑ ہوتی تھی، اور مرنے والا یہ کہہ کے مرتا تھا کہ میں تمہیں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا میرے بیٹوں جب تک فلاں قبیلے سے تم بدلہ نہ لے لو، ان کو مار کے ان کی کھوپڑیاں اتار کے ان کھوپڑیوں میں شراب نوشی نہ کر لو گے، اس وقت تک میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ ایسی دشمنی پھیلی ہوئی تھی۔ یہی نہیں،
कुरान करीम कहता है वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, मासूम बेगुनाह बच्चियाँ जो सिन्फ नाजुक पैदा होती थी जिसके घर पर, उसको ले जाके बाप बेरहम जंगल में ले जाता था, गड्ढा खोदता था और उस बच्ची को दफन करने के इंतजामात और तैयारी करता था। और वो मासूम और बेगुनाह बेटी जब बाप बैठता था तो उसका पसीना पूंछती थी और कहती थी अब्बा हुजूर ये क्या कर रहे हैं। वो जालिम था कि आप देखता था ना ताओ, कुछ ना सुनता था। वो गड्ढा खोदता था और इतना गड्ढा गहरा खोद देता था कि बच्ची खड़ी की खड़ी उसमें दफन हो जाए। वो उसको ऊंधे मुंह उसमें डालता था और उसके ऊपर मिट्टी बरसा देता था जैसे हम अपने मुर्दों के ऊपर बरसाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए और आपके सामने जब ये हालात सुनाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे हमारी मजलिस से दूर चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे जुल्म और सितम की वजह से अल्लाह का अजाब हमारे ऊपर भी ना आ जाए। ये क्यों करते थे? इसलिए कि उसके दिल दिमाग के अंदर, उस बुद्धू के दिल के अंदर, उस जाहिल के दिल के अंदर और उन लोगों के दिल के अंदर ये बात घर का गिरगी कि कोई दामाद बन के आएगा, मेरी बेटी दूसरे के घर जाएगी, मेरी नाक कट जाएगी। कुर्बान जाइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुरान कहता है लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्दि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाकर इस दुनिया में प्यार का, मोहब्बत का, अमन का, शांति का, उख़ुवत का, भाईचारे का इतना शानदार सबक पढ़ाया और इतना शानदार दर्स दिया जिसकी मिसाल दुनिया पेश नहीं कर सकती। और कुरान कहता है ज़मीन और आसमान के बीच में जितनी खला है, जितनी जगह खाली है, सोने और चांदी से भर देते और उस अदावत को ख़त्म करके मोहब्बत पैदा करते तो मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। वो मोहब्बत पैदा हुई आकाए नामदार, ताजदार मदीना, आमना के लाल, ख़ानदान हाशमी के सपूत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से। आपने अपने सहाबा को ऐसा दर्स पिलाया, ऐसा दर्स दिया, ऐसा मोहब्बत का जाम पिलाया कि परवानों की तरह आपकी मोहब्बत में टूट पड़ते थे। रिवायतों में आता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी वज़ू फरमाते हैं तो सहाबा दौड़ते हैं दूर से और आपके गसलाए वज़ू को लेकर जो पानी आपके वज़ुओं से टपकता था, पैर धोते थे, हाथ धोते थे, मुंह धोते थे, जो पानी वज़ू का टपकता था, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन उस पानी को लेके इतर की जगह इस्तेमाल करते थे और अपने आप को मुअत्तर किया करते थे। अल्लाहु अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पचना लगवाते हैं, खून निकालते हैं, किसी सहाबी को देते हैं, ले जाओ ऐसी जगह पे इसको रख के आओ जहाँ किसी का कदम ना पड़े। इधर सोचा उधर सोचा क्या करना चाहिए, उन्होंने उस खून को पी लिया। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुआ उसको? कहा कि या नबी अल्लाह मैं किस जगह डालता, जहाँ डालता वहाँ किसी का कदम आता, आपकी मोहब्बत में मुझे इस चीज़ को गवारा नहीं हुआ, मैंने उसको पी लिया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जहन्नम की आग तेरे ऊपर हराम होगी। बुजुर्गों और दोस्तों, ये महीना रबीउल अव्वल का महीना है, बहुत मुबारक महीना है। इस्लामी महीनों की तारीख़ है, हर महीने के साथ किसी न किसी की कोई ना कोई निस्बत है। आज जुमे का दिन है, ये तमाम दिनों का सरदार है। रबीउल अव्वल का महीना जिसकी निस्बत हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसकी निस्बत है। पैदा भी आप इसी महीने में होते हैं, वफ़ात भी आप इसी महीने में फरमाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए तकलीफ़ें और गम कितने उठाए, इस उम्मत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को कितना कुढ़ाया, कितना अपने आप को परेशान किया, कितने भूखे रहे, कितने रातों को जागे, कितने अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, कितने आहू बुका की। आज हम और आप कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं। एक रात नबी जैसी, एक दिन नबी जैसा, एक हफ्ता नबी जैसा, एक महीना नबी जैसा कोई गुजार के तो कहे, फिर ये कहे कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को रो रहे हैं, रातों को गिड़गिड़ा रहे हैं,
इतनी लंबी लंबी नमाजें पढ़ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादा फरमाया, नबी अल्लाह आपका जाने वाले दिन से आने वाला दिन बेहतर है, गुजरने वाली रात से आने वाली रात बेहतर है। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, या नबी अल्लाह आप बख्शे बख्शाए हैं, आपकी ज़िम्मे कोई खता भूल चूक है ही नहीं, बिल फ़र्ज़ कुछ हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादा फरमाया है कि आपकी सय्यात को हसना से मुबद्दल कर देंगे। आपकी ज़िम्मे कोई चीज़ है ही नहीं, अगर कुछ है बिल फ़र्ज़ मान लें तो अल्लाह ताला उसको नेकियों से बदल देंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, अय आयशा क्या मैं खुदा का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? जब अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर इतनी नवाजिश की, इतना करम किया, इतना फजल फरमाया, तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों पे वरम आ जाता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात उम्मत के गम में, उम्मत की कुढ़न में, उम्मत की फिक्र में, या अल्लाह जिस कलमे को मैं लेके आया हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर कच्चे और पक्के झोंपड़े के अंदर, हर समंदर की लहर में, हर आसमान की फिजा में, हर घर में ये पढ़ने वाला पैदा ना हो जाए, उस वक्त तक या अल्लाह मोहम्मद को चैन आ नहीं सकता। कभी इस करवट पे, कभी उस करवट पे, कभी ये पहलू, कभी वो पहलू, रात को रो रहे हैं, आहें कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो भी जाग रही है, अब्बा की इस रात को मुलाहजा कर रही है। पूछती, अब्बा जान ये मकाम दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को, जुल्म होता था, सितम होता था, जिंदा दरगोर की जाती थी। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी बेटी फातिमा आती थी तो अपने सर मुबारक से रुमाल उतार कर बिछा देते थे, बेटी इस पे बैठ। ये मकाम दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन औरतों को। कहते हैं हुकूमत वाले कि मुसलमान औरतों को दबाते हैं, उनके हुकूक नहीं देते हैं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिसाल पेश की है, दुनिया का बड़ा सा बड़ा कोई भी बादशाह उस मिसाल को पेश कर नहीं सकता। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रात भर जाग रही है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती, अब्बा जान क्या आपको कोई तकलीफ़ है, क्या आपको कोई परेशानी है? रात भर आप जागते रहे, कभी इस करवट पे, कभी उस करवट पे। वो किसी शायर ने कहा है ना, कबाब सीख हम हर तरफ पहलू बदलते हैं, कबाब सीख हम हर तरफ पहलू बदलते हैं, जल उठता ये पहलू तो वो पहलू बदलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी से कहते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं, सिर्फ एक गम मुझे खाया जा रहा है कि जिस कलमे को मैं लेके आया हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हर कच्चे और पक्के झोंपड़े तक पहुँच जाए, सब लोग कलमा पढ़ने वाले हो जाएं, कोई दोज़ख का ईंधन ना बने, सारे के सारे जन्नत के हकदार बन जाएं। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत के लिए कुड़न और मोहब्बत थी। यही नहीं बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारी मेहरबानियाँ, बहुत सारी इनायतें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजू, आपकी ज़ात, आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, आपका फिरना, आपका खाना, आपका पीना, आपका रिश्तेदारों के साथ, बीवी बच्चों के साथ, महल्ले वालों के साथ, पड़ोसियों के साथ जो जो आपके बर्ताव थे, वो कोई एक दिन या एक घंटे और एक मिनट में बयान नहीं कर सकता। जिसने भी इस मैदान में कदम रखा, चाहे वो बबांग दोहल बयान करने वाला हो या वो कलम से लिखने वाला हो, उन सब ने एक ही बात कही, बाद अज खुदा बजरुक तो ये किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद अगर कोई हस्ती, अगर कोई ज़ात है तो सिर्फ वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं, माँ से बढ़ के मोहब्बत करने वाले, हर उम्मती का फ़िक्र करने वाले, कलमे का फ़िक्र करने वाले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, मौत का फरिश्ता हाजिर होता है और कहता है, या नबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अपने दरबार में याद किए हैं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुशबख्ती, खुश नसीबा अल्लाह के दरबार में चलना, लेकिन या रब्बि हबली उम्मती, या रब्बि हबली उम्मती, या रब्बि हबली उम्मती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठों से कोई आवाज़ निकलनी बिल्कुल बंद हो गई, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उस वक्त अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, या अल्लाह मेरी इस भोली भाली उम्मत का क्या होगा।
उस उम्मत में आप भी हैं, उस उम्मत में मैं भी हूँ, जिसने कलमा पढ़ा वो भी है, सारे के सारे मुसलमान हैं। सोचा कभी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में सकरात के आलम में, जब नफ्सी नफ्सी का आलम होता है, इंसान को अपने माँ बाप याद आते हैं, रिश्तेदार याद आते हैं, घर छूटना मुश्किल होता है, आंखें डगमगाती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही फिक्र है, या रब्बि हबली उम्मती, या रब्बि हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी इस भोली भाली उम्मत का क्या होगा। मौत को फरिश्ते को कहा, अय मौत के फरिश्ते, अल्लाह के दरबार में जा और मेरी इस उम्मत के बारे में पूछ क्या। बहुत नबियों की उम्मतों की उम्रें बड़ी बड़ी थी, 900 साल की, 950 साल की, 1000 साल की। मेरी उम्मत की तो मुख्तसर सी ज़िंदगी है, छोटी सी ज़िंदगी है। इसमें भी इनसे जो गुनाह सरजद हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको माफ़ कब फरमाएंगे। 60-70 साल की ज़िंदगी। मौत का फरिश्ता गया, अल्लाह के दरबार में पूछता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत की बख्शिश और मगफिरत और दोज़ख से आज़ादी का सबब क्या बनेगा। किस वक्त वो तौबा करेगा, कैसी तौबा करेगा, कितने साल पहले तौबा करेगा, तो अल्लाह माफ़ फरमाएंगे। जिस तरीके से आता है ना कि मेराज की रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाजें दी, फिर माफ़ करवाई, 5 नमाजें रही। और 5 नमाजें जो हम और आप पढ़ते हैं, उन 5 नमाजों का सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 50 नमाजों का सवाब अता करेंगे। वो मौत का फरिश्ता आके कहता है कि 1 साल मरने से पहले आपका उम्मती कोई तौबा कर लेगा, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, सच्चे दिल से तौबा कर लेगा, हम उसको माफ़ कर देंगे। 1 महीने का कहा, साल का कहा, अल्लाह के नबी ने कहा बहुत बड़ी मुद्दत है, गौर से सुनने की बात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्ता आके कहता है, जिसने मरने से 1 दिन पहले हट्टे कट्टे तंदुरुस्त अल्लाह के सामने तौबा की, कल वो मर गया, अल्लाह उसको माफ़ कर देंगे। अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मौत के फरिश्ते, अब तुझे इजाज़त है कि तू मेरी रूह कब्ज़ कर सकता है। जब वो रूह निकालने लगा, निकालते निकालते पैरों की तरफ से रूह निकलती है, जब घुटनों तक आई तो बहुत शदीद दर्द हुआ, बहुत शदीद तकलीफ़ हुई। अल्लाह के नबी उठ के बैठ गए, सारी बातें सुन के, दामन झटक के, इस कान से इस कान निकाल के जाने की नहीं है। अल्लाह से नियत करो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वादा करो, इस घर के अंदर बैठ के मन ही मन में कि या अल्लाह जो कुछ ज़िंदगी गुजरी वो गुजरी, काले करतूत जो हुए वो हुए, या अल्लाह तू माफ़ कर दे। अब से मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पक्की सच्ची इत्तिबा करूँगा। कैसी मोहब्बत थी अल्लाह के नबी को। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मौत के फरिश्ते, कि ये तकलीफ़ मुझे होती है या हर मरने वाले को। फरमाया कि अल्लाह के नबी, ये हर मरने वाले को इससे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ये तो कोई तकलीफ़ नहीं है, आपकी रूह मुबारक को मैं मुंतकिल कर रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से, एक जगह से दूसरी जगह ले रहा हूँ। मरने वाले को मौत के वक्त ऐसी ऐसी तकलीफ़ होती है, अल अमान अल हफीज़, जैसे कोई रेशम के कपड़े में झाड़ी का कोई है जो एक कांटा चुबा दिया जाए और उसको खींचा जाए, जिस तरीके से वो सुकड़ता है उस तरीके से इंसान सुकड़ता है। बाज़ लोगों के हलक खुश हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं, मुंह खारा हो जाता है, उस मुंह का खारापन मरते दम तक वो नहीं भूलता है, आखिर तक नहीं भूलता है, क़यामत तक नहीं भूलता, इतनी शदीद मौत आती है। उस वक्त अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे और आपको याद रखते हैं, इस उम्मत को याद रखते हैं। मौत के फरिश्ते को एक बात कहते हैं, आए मौत के फरिश्ते, जिसने भी कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो मर्द हो या औरत, वो छोटा हो या जवान या बच्चा, उन तमाम की मौतों की तकलीफ़ मुझ अकेले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दे, मेरी उम्मत के किसी उम्मती को वो तकलीफ़ मत देना। बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के नबी ने किस किस तरीके से हमारे और आपके साथ में प्यार किया है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी और आपकी कितनी फ़िक्र की है। और कुर्बान जाइए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानियों पर, वक्त ज़्यादा हो गया, अल्लाह ताला ने हमें और आपको इंसान बनाए जो सबसे बेहतरीन और सबसे आला, सबसे अफजल मखलूक है।
نہ چاند اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ سورج اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ایسے سانچے میں ڈالا انسان کو، چاند سورج ستارے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر مہربانی بالائے مہربانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا امتی بنائے۔ نبیوں نے رسولوں نے اللہ کے سامنے دعائیں کی، یا اللہ تو ہمیں نبی اور رسول مت بنانا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا امتی بنانا۔ ہمیں اور آپ کو بن مانگے یہ نعمت عظمیٰ، یہ اللہ کی بڑی مہربانی، اللہ کی بڑی عنایت ملی ہے، اللہ اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہ بنے تو نہ بن، اپنا تو بن۔ کبھی گریباں میں منہ ڈال کے سوچو کہ اللہ نے آپ کو اور ہمیں کیا قدر و منزلت دی ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، نائب بنایا، مسلمان بنایا، انسان بنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہی نہیں، باتیں بہت ساری ہے، بہت ساری سامنے آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت اور صورت بیان کریں تو بہت سال ہا سال میں پوری نہیں ہو سکتی، زندگی بھر میں پوری نہیں ہو سکتی۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ اس امت کا رتبہ اور مرتبہ کیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام 1,24,000 نبیوں کے پاس وحی لے کے آنے والے، کبھی اللہ کے دربار میں، کبھی نبیوں کی چوکھٹ پر، کبھی اللہ کے دربار میں، کبھی نبیوں کی چوکھٹ پر، 1,24,000 نبیوں کے پاس وحی لے کے آنے والے جبرائیل اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے جاتے ہیں۔ میں نے ابھی کہا تھا نا، اے دل نہ پوچھ مجھ سے کہ رتبہ ان کا کیا ہے، اے دل نہ پوچھ مجھ سے کہ رتبہ ان کا کیا ہے، فرشتے بھی حیران ہے مقام ان کا کیا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ پہ پہنچتے ہیں، جبریل کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ اوپر تشریف لے جائیں، میں ایک بالشت آگے بڑھا تو اللہ کی تجلی سے، اللہ کے نور سے جل کے میں خاک ہو جاؤں گا۔ جبریل ٹکٹکی باندھ کے حیرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اے دل نہ پوچھ مجھ سے کہ رتبہ ان کا کیا ہے، فرشتے بھی حیران ہیں مقام ان کا کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں اتنے قریب گئے کہ کعبہ قوسین سے قرآن یاد کرتا ہے، جس قلم سے انسانوں کی تقدیریں لکھی جاتی تھی، وہ قلم کی آواز اور کاغذ کی آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک کانوں سے سن رہے تھے۔ جب اوپر جانے لگے تو جبریل نے فرمایا اللہ کے نبی میں ایک درخواست کرتا ہوں آپ سے، 1,24,000 نبیوں کے پاس بار بار اللہ کے دربار میں گیا، نبیوں کی چوکھٹ میں آیا، پھر بھی جبریل اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہے، جبریل اپنے آپ کو فیل سمجھتا ہے۔ یا اللہ ایک درخواست ہے اللہ کے دربار میں، جبریل کی طرف سے ایک التجا کر دینا، ایک درخواست رکھ دینا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر دی تو جبریل کی زندگی کامیاب ہے، جبریل کی زندگی فلاح و بہبودی والی ہے، نہیں تو جبریل تو ناکام ہو گیا، جبریل تو فیل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام، سارے انبیاءوں کے، سارے جو ہے فرشتوں کے سردار، نبی کے پاس آنے والے 1,24,000 نبیوں کے پاس اللہ کے دربار میں کبھی نبیوں کی چوکھٹ میں اپنے آپ کو فیل سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو ناکام سمجھ رہے ہیں۔ کامیاب ہونے کے لیے کیا مانگا؟ ذرا غور سے سنیں۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ، لوگوں نے کلمہ پڑھ کے اللہ کے اعمال سے منہ موڑ لیا، نمازیں چھوڑ دی، زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا، حج چھوڑ دی، روزے چھوڑ دیے، سارے کام چھوڑ دیے۔ یا اللہ، جنت کو اپنی نانی ماں کا گھر سمجھ لیا ہے، ایسا نہیں۔ جنت تپسیا کے بعد، جنت پگھلنے کے بعد، جنت مجاہدات کے بعد، جنت ریاضت کے بعد، جنت عبادت کے بعد ملے گی، جنت آزمائشوں کے بعد ملے گی۔ جنت میں جانا اتنا آسان نہیں۔ وہ پل صراط جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے، 1500 سال کا راستہ ہے، 500 سال چڑھائی کا، 500 سال سیدھا، 500 سال ڈھلائی کا۔ جبریل کہتا اللہ کے نبی، اس پل صراط کے نیچے آگ دہکائی ہوئی ہے، پہلے دہکائی تو پیلی ہوئی، پھر لال ہوئی، پھر کالی ہوئی، اور وہاں سے جب لوگ گزریں گے تو اللہ والے لوگ
अमाल वाले लोग, नेक लोग, मुत्तकी लोग, परहेजगार लोग, इत्तिबा करने वाले बिजली का बटन दबाए और जैसे पार हो जाएं वैसे हो जाएंगे, लेकिन जो गुनहगार बंदे होंगे वो कट कट के उसके अंदर गिर रहे होंगे। जिब्रील क्या कह रहा है? अल्लाह के नबी, मुझे कामयाब होना है, मैं फेल हो गया, मुझे फलाह बहबूदी पानी है। आप उस पुल सिरात पर आपकी उम्मत के गुनहगार उम्मती गुजरेंगे, कट कट कर दोज़ख के अंदर गिर रहे होंगे। जिब्रील फरिश्ते की, फरिश्तों के सरदार की, 1,24,000 नबियों के पास वही लेके आने वाले फरिश्ते की ये तमन्ना है कि उस पुल सिरात पे जिब्रील के पर बिछे हुए हों, गुनहगार उम्मत के कदम हों और जन्नत के अंदर दाखिल हो रहे हों। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमें और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पक्की सच्ची इत्तिबा नसीब फरमाए। जो कुछ हमारी ज़िंदगी में, आखिरी एक बात कह रहा हूँ, एक शायर ने कहा है, बाज़ा बाज़ा हर आँच कर दी बाज़ा, बाज़ा बाज़ा हर आँच कर दी बाज़ा, घर का फिरोग गिबरो बुत परस्ती बाज़ा, सद बार अगर तो बा शिकस्ती, सद बार अगर तो बा शिकस्ती बाज़ा, इन दरगाहे माँ दरगाहे नो उम्मीदी नेस्त। अय बंदा संभल जा, सुधर जा, रुक जा, जिंदगी है, सांस है, तंदुरुस्ती है। कुफर तूने किया, शिरक तूने किया, अल्लाह के सामने तौबा कर ले। अल्लाह की तरफ एक बालिश चलेगा, अल्लाह एक हाथ चलेगा, अल्लाह की तरफ एक हाथ चलेगा, अल्लाह की रहमत दौड़ के तुझे गोद में ले लेगी। बुजुर्गों और दोस्तों, 3 कतरे अल्लाह को बहुत पसंद है, ज़मीन पे गिरने नहीं पाते, अल्लाह कबूल फरमा लेता है। शहीद के खून का कतरा, कुर्बानी के खून का कतरा, और गुनहगार इंसान पिष्टा के काली रात में घनेरी जुल्फें बिखार के, जब डरावनी रात हो, चुपचाप उठ के अल्लाह के घर में आए, वुज़ू करे ठंडे पानी से, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के मांग ले, आंसू गिरने से पहले अल्लाह की रहमत जोश में आके उसकी मगफिरत फरमा लेती है। अल्लाह मुझे भी, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए।